Hello everyone, welcome to session. So in this session, we're going to do inequalities. In inequalities, we're going to discuss two things. First is the basic properties of inequalities and other is the solution of inequalities. So for that, we'll be using wavy curve method. So these are the two topics that we'll be discussing under inequalities. So let's first see the basic properties of inequalities. So in basic properties of inequalities, there are I think total 13 properties. So we'll discuss one by one. And many of you know already, like बहुत सारी properties तो मैं पहले से बताऊंगी and few might be new for you. Fine. So let's discuss them one by one. So first property is A greater than B. So what is basically when you want to represent that A is greater than B, so this is the symbol that we use. This is the symbol that we use, and this can also written like this, that B is less than A. This will be called A is greater than B, and here B is less than A. Both are the same thing. Is it or not? A is greater than B and B is less than A. Both are the same thing. How you can like remember this simple? So you can see here this side are 2 points, where this side is 1 point. So where 2 point is pointing, that thing that number is greater, where 1 point is on side, that is a less. Okay, that is a less quantity, this is a greater quantity. So this is a less quantity, this is a greater quantity. Very simple thing. I hope everyone knows this thing. Now let's see the second property. So second property is A greater than B. A greater than B and B greater than C, then A will be greater than C. How this relation? So you can see here, let's say A is your 5 and B is your 4. So A is greater than B and B is your 4, but B is greater than C. So B must be 3. 3 से कम होना चाहिए. So B is 3. So here you can see relation between A and C is that A is greater than C. A is 5, C is 3. So A is greater than C. I hope this thing is clear. This is also simple thing. So these properties are clear. Now let's see the third property. So in third, the first part, if A is greater than B, A is greater than B, then any quantity added or subtracted on both sides does not affect this inequality. This is a simple thing. Like same thing we'll do the like equality में भी हम same चीज करते हैं. तो inequality में भी same thing holds. अगर A is greater than like B, so if you add both side 3, if you add both side 3, still this inequality will hold. There will not be any problem in this inequality. And suppose you subtract anything, let's say you subtract 2. If you subtract same thing both side, that will also not affect inequality. Simple. If A is greater than B, then any positive quantity multiplied or divided. This was for your addition. Now for multiplication. If A is greater than B, and also one more thing, this also holds for less than. If this is A less than B, then also this inequality will hold. If you add both sides something, that will not affect inequality. So this is not only for A greater than B. This is holds for any inequality. Even for equal to also the same thing hold. है ना? So if A is greater than B, अगर A greater than B है, then any positive quantity multiplied or divided. Positive quantity, let's say you multiply 2. 2 is a positive number, multiply 2. So this will not also affect your inequality. Inequality तुम्हारी वैसी ही रहेगी. अगर greater than है तो greater than रहेगी, less than है तो वो less than रहेगी. That will not change. But important point ये है तुम्हारा जो multiply कर रहे हो, that must be greater than, that must be a positive quantity. 0 से बड़ी quantity होनी चाहिए. Same goes for divide. अगर तुम divide कर रहे हो, if you dividing by some number, if that are positive number, then your inequality will not be affected. Okay, fine. So this here you can see. I hope third property is clear. Fourth property, if A is greater than B, now if you negative quantity से multiply या divide करोगे, like suppose you multiply by -2 both side, now inequality will get changed. Now inequality will get changed. For example, let's take a number. Let's say 4 is greater than 3. Now if you multiply it by -2 both side, if you multiply both side, -2, that is -8, that is -6. So who is greater now? This is greater. So your inequality will get reversed. Your inequality will get changed if you multiply it with negative quantity. Same goes for if you divide it by negative quantity. ठीक है? अगर तुम इसको नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करते हो तब भी सेम आएगा. लाइक 4 and let's say 2. If you divide them by -2, if you divide them by -2, so this become -2 and this become -1. Who is greater? This is greater.
आई होप ऑल दीज प्रॉपर्टीज आर क्लियर. तो दिस वाज साइन फॉर इनइक्वालिटीज. अब एक तो तुमने देखा पॉजिटिव क्वांटिटी, नेगेटिव क्वांटिटी, देन जीरो क्वांटिटी के लिए क्या होगा? जीरो के लिए क्या होगा? अगर जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो वो इक्वालिटी होल्ड कर जाएगा. आई होप ये बात समझ रहे हो. तो वो इक्वालिटी में कन्वर्ट हो जाएगा. लाइक सपोज अगर तुम 4 इज ग्रेटर देन 2, अब इसको अगर जीरो से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इनइक्वालिटी चेंज होकर इक्वालिटी बन जाएगी. फाइन, सिंपल सी चीज है. ओके. फिफ्थ प्रॉपर्टी, इफ a प्लस सी इज ग्रेटर देन b, देन ओके वी कैन डू दिस थिंग. तो ये डिफरेंट फॉर्म में लिखने के, ठीक है. अगर देखो a प्लस सी इज ग्रेटर देन b, देन यू कैन राइट, यू कैन ब्रिंग सी दिस साइड, यू कैन ब्रिंग दिस साइड, है ना. या फिर यू कैन ब्रिंग लाइक a प्लस सी, यू कैन ब्रिंग b दिस साइड. कहीं पर भी ले जा सकते हो टर्म को. लाइक यू कैन इक्वेट विद, यू कैन ब्रिंग राइट हैंड साइड जीरो, और लाइक ये तो बेसिक चीज है, हमने इक्वालिटी में भी की है ना. नॉर्मल इक्वेशंस में ये करते हैं, शिफ्टिंग करते हैं. राइट हैंड से एलएचएस, एलएचएस से राइट हैंड टर्म को ले जाएंगे. एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि साइन चेंज हो जाएगा, है ना. जैसा तुम्हारा इक्वालिटी में होता है वैसा ही. लाइक अगर a प्लस सी इज ग्रेटर देन b लिखा हुआ है, तो अगर तुम b को इस साइड लाओगे आरएचएस से एलएचएस पे, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा. सिंपल. ओके. तो आई होप दिस फिफ्थ टिल हियर इज एवरीथिंग इज फाइन. इफ a इज ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b है, एंड a1 इज ग्रेटर देन b1, a2 इज ग्रेटर देन b2, ये इनइक्वालिटी है. अब अगर तुम इनको ऐड करोगे, यहां पर a1 होगा, अगर तुम इनको ऐड कर दोगे इनइक्वालिटीज को, a1 a2 b1 b2, यही सिंबल देखो, सिंबल सबके सेम है, तो इसको नॉर्मली ऐड कर सकते हो एंड इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम. a1 प्लस a2, इसको नॉर्मली ऐड कर सकते हो. यू कैन ट्रीट इट लाइक अ जस्ट इक्वल टू साइन. अगर सारी इनइक्वालिटीज का डायरेक्शन सेम है, अगर ऐसी इनइक्वालिटी है, देन यू कैन नॉट डू दिस एडिशन, ठीक है. नाउ if a is greater than b and c is greater than d, same thing, a is greater than b, c is greater than d, दोनों इनइक्वालिटी के साइन सेम है, यू कैन ऐड देम, दैट इज a प्लस सी एंड दैट इज b प्लस टी. ये आ जाएगा. अगर इनइक्वालिटी सेम है तो मैं एडिशन कर सकते. a is greater than b and c is greater than d, again you can subtract a minus c and b minus d, या फिर यू कैन से c minus a डी माइनस बी, दोनों चीजों का सेम ही रिजल्ट है. ओके. तो दिस इज ऑल्सो क्लियर. नाउ टेंथ, जो भी हमने पीछे देखा, लाइक a इज ग्रेटर देन b, अगर तुम कोई चीज सब्ट्रैक्ट करोगे पॉजिटिव चीज, तो इनइक्वालिटी पे पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो रिपीटेटिव है. 11th प्रॉपर्टी चेक करते हैं. a बाई सी इज लेस देन b बाई डी, a बाई सी इज लेस देन b बाई डी. तो सिंपली इसे मल्टीप्लाई कर सकते हो a d एंड b c. सो दिस विल बी इनइक्वालिटी, बट यू हैव टू मेक श्योर दैट दीज आर ग्रेटर देन जीरो. c और d तुम्हारे ग्रेटर देन जीरो हैं, ठीक है. अब ये दो एक्सप्लेन करता हूं मैं तुम्हें. ये दोनों अगर आगे हम देखें, ये मैक्सिमम मिनिमम में, एक बार इसको फिर डिस्कस करेंगे. मैक्सिमम मिनिमम में डिस्कस करेंगे. एंड we also discuss this thing in the APGP, like जो मैक्सिमम मिनिमम बेसिकली डिस्कस करेंगे वो AP और GP से डिस्कस करेंगे. इसको कैसे फिगर आउट करते हैं. a प्लस 1 बाई a, अगर कोई पॉजिटिव नेचुरल नंबर बोलो या फिर a ग्रेटर देन जीरो बोल देते. अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 2 होगी. ये बात समझ में आ रही. इसकी जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 2 होगी. फॉर एग्जाम्पल अगर तुम इसको 2 भी ले लो, 1/2 ले लेते हैं इसको, 1/2, तो ये कितना आ रहा है, 2.5 आ रहा है ना. तो फॉर अगर कोई ऐसा टर्म लिखा हुआ, आई थिंक आई हैव रिसेंटली यूज दिस, है ना. अभी हमने इसको आई थिंक लास्ट सेशन में मैंने यूज किया था इस चीज को. 1/a प्लस 1/a ग्रेटर देन 2. अगर ये तुम्हारा एक पॉजिटिव है, ग्रेटर देन जीरो है, तो इसकी ऑलवेज मिनिमम वैल्यू जो होगी a प्लस 1/a, a और उसके एक नंबर और उसके रेसिप्रोकल की जो मिनिमम वैल्यू होगी दैट विल बी 2, अगर वो नंबर ग्रेटर देन जीरो है, ठीक है. अच्छा, ये क्या है, जिसने एपीजीपी पढ़ा होगा उन्हें पता है, नहीं पढ़ा है तो आगे भी हम पढ़ेंगे एपीजीपी. तो दिस इज लाइक योर जेमेट्रिक, दिस इज कॉल्ड जेमेट्रिक मीन, दिस इज कॉल्ड जेमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर, एंड दिस इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर. दिस अर्थमेटिक मीन एवरेज सबको पता है, जेमेट्रिक मीन यू मे नॉट नो, सो दैट विल बी डिस्कसिंग फर्दर.
आगे हम डिस्कस करेंगे जब एपीजीपी पढ़ेंगे. सो दिस इज ऑलवेज, ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू अर्थमेटिक मीन. इसी का यूज करके तुम्हारा ये वाला ये जो वैल्यू लिखी यहाँ पर, ये इसी से ड्राइव हुई. दिस वैल्यू हैज बीन ड्राइव फ्रॉम दिस. ड्राइव करके को मैं अभी तुम्हें दिखाता हूँ, लाइक वी कैन से चेक इट नाउ. तो देखो अभी यहाँ पर मैं क्या करूँ, और ए और बी तुम्हारे बहुत पॉजिटिव है, डाटा ग्रेटर देन 0. यहाँ पर देखो क्या कर सकते हैं, जस्ट तुम ए बी को 1/2 रख दो. जस्ट बी को 1/2 नहीं, 1/a रख दो. बी को मैंने 1/a रख दिया. ठीक है, देखो सेम अभी आ जाएगा जो यहाँ पर लिखा हुआ है. बी को मैंने 1/a लिख दिया. अब ये कैंसिल आउट हो गया, ये 1 आ गया और ये 2 इधर आ जाएगा. a + 1/a, देखो प्रूव हो गया. यही तो है, ऊपर यही लिखा हुआ है, दिस थिंग. सो ये जो डेरिवेशन है वैसे ये याद रखो, बट ये जो आया है दैट इज कम्स फ्रॉम एपी और जीपी के रिलेशन से. दैट अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन व्हेन बोथ द क्वांटिटीज आर पॉजिटिव. ठीक है, तो इंपॉर्टेंट पार्ट ये चीज याद होनी चाहिए तुम्हें, और ये रिलेशन आगे तुम पढ़ेंगे, बट अभी के लिए भी तुम्हें याद होना चाहिए. दैट अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन. और ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 2 नंबर्स क्या होता है, अगर लेट से तुम्हारे 2 नंबर हैं, लेट से 4 एंड लेट से 9, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा. देयर आर 2 नंबर्स 4 एंड 9, तो इनका ज्योमेट्रिक मीन होगा √4 × 9. सो दैट इज 2 × 3, दैट इज 6. आई होप दिस इज क्लियर. अब समझ में आ गया मोटा मोटा ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है. आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हेन विल बी लर्निंग एपी एंड जीपी. अब कुछ बेसिक से क्वेश्चन करते हैं. लिस्ट द सॉल्यूशन गिवन दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर. ओके, तो इसके सॉल्यूशन निकालने, और x तुम्हारा एक पॉजिटिव इंटीजर है. इसके सॉल्यूशन निकालने, x तुम्हारा एक पॉजिटिव इंटीजर है. सिंपल. 32 - 4 2x - 1 लेस देन 32. सो 32 कैंसिल हो जाएगा, है ना. अब -4 2x - 1 लेस देन 0. अब देखो, अगर मैं दोनों साइड मैं माइनस से इसको मल्टीप्लाई करता हूं, इसको -0 से कैंसिल आउट नहीं कर सकते. दोनों साइड हमें माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है. ठीक है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी. इसको नोट डाउन कर लो. अगर तुम्हारा लेट से कुछ ऐसे इक्वेशन लिख ले, a ग्रेटर देन b लिखा हुआ है, a ग्रेटर देन b सपोज लिखा हुआ है. इफ यू मल्टीप्लाई इट विद बाय बोथ साइड माइनस, तो इनइक्वालिटी तुम्हारा चेंज हो जाएगा. ठीक है, फिर से मैं बता देता हूं. अगर लेट से a ग्रेटर देन b लिखा हुआ है, अगर तुम दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा. जस्ट नोट डाउन दिस थिंग. ये एक और प्रॉपर्टी ऐड कर लो 14th प्रॉपर्टी की तरह. तो यहां पर मैंने माइनस मल्टीप्लाई किया तो इसकी इनइक्वालिटी चेंज हो गई. ठीक है, अब ये 4 भी कैंसिल हो जाएगा. 2x - 1, सो 2x 1, x इज ग्रेटर देन 1/2. x की वैल्यू ग्रेटर देन 1/2. तो दैट इज द पॉसिबल सॉल्यूशन से कि लाइक x इज ग्रेटर देन 1/2. तो अगर इसको रिप्रेजेंट करोगे, आगे हम वेविकर मेथड में देखेंगे रिप्रेजेंटेशन, बट अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो 1/2 कॉमा इंफिनिटी आएगा. दिस इज कॉल्ड द सॉल्यूशन. x बिलोंग्स टू दिस रेंज. ओके, if this is this these are the two equation, then the range of values of x. Okay, so 6x plus 8 greater than 7x minus 9, and this is just मैं LHS और RHS में x को और constant term को एक साइड कर रहा हूँ 17, and this is x. So x is your less than 17. x is less than 17. x तुम्हारा 17 से लेस है. अगर इस इक्वेशन को देखें तो 4x minus 7 less than 6x minus 3. So this is 2x and -7 plus 3, that is -4. So your x is greater than -2, greater than -2. तो अब क्या करना है तुम्हें, इन दोनों ऐसी वैल्यूज लेनी है जो इन दोनों को सेटिस्फाई कर रही है. यू हैव टू टेक दोज वैल्यूज ऑफ x, दोज आर सेटिस्फाइंग बोथ द इक्वेशन. तो ये इक्वेशन बोल रहा है कि x की वैल्यू -2 से बड़ी होनी चाहिए, और ये बोल रहा है x की वैल्यू 17 से लेस होनी चाहिए. तो ऐसे एक लाइन ड्रॉ करो, नंबर लाइन. तो दिस इज -2 एंड दिस इज 17 यहां पर होगा. तो इसके बीच के जितने सॉल्यूशन है, इसके अकॉर्डिंग इधर के सारे सॉल्यूशन है,
इधर के सारे, इधर इनफाइनाइट होगा पॉजिटिव, इधर होगा माइनस इनफाइनाइट। तो अकॉर्डिंग टू दिस इधर के सारे सॉल्यूशन पॉसिबल हैं इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। अगर इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखो तो लेस देन 17, लेस देन 17, तो लाइक इधर के सारे सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। तो कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन पार्ट ऑफ सॉल्यूशन इज दिस वन। तो x का जो सॉल्यूशन है डेट इज -2 से 17 के बीच में। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। जस्ट मैंने कॉमन सॉल्यूशंस ले लिए दैट आर द रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ x दैट इज सेटिस्फाइंग बोथ द इक्वेशन। If P is the solution set of this and Q is the solution set of this, तो ये देखो सेम क्वेश्चन है, जस्ट लैंग्वेज थोड़ा लिख दिया है। तो अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो इस सॉल्यूशन, इस इक्वेशन के पहले सॉल्यूशन निकालते हैं। इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालोगे, अभी मैं सब एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि P इंटरसेक्शन Q और X बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, इसका मतलब क्या है। इसको देखो, इस स्टेटमेंट को ऐसे पढ़ते हैं, ये जो साइन है इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू। तो इसका मतलब है x बिलोंग्स टू, n का मतलब होता है नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। तो मतलब x की वैल्यूज जो है वो सारी नेचुरल नंबर्स हैं। इसका मतलब क्या होता है, p इंटरसेक्शन q, p इंटरसेक्शन q मतलब p और q में जो कॉमन वैल्यूज हैं, है ना। अगर तुमने वेन डायग्राम पढ़ा होगा तो इंटरसेक्शन क्या होता है, ये पार्ट, अगर ये p है और ये q है, जो दोनों में कॉमन है दैट इज p इंटरसेक्शन q, सिंपल। तो यहां से अगर हम इसको करें तो डेट इज 6, सो डेट इज x ग्रेटर देन 3। इसका सॉल्यूशन आ रहा है p का सॉल्यूशन आ रहा है x ग्रेटर देन 3। q का निकालें मगर 3x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 19 माइनस x दैट इज 4x एंड दैट इज 18 ना, 18। यहां पर भी सही था, लाइक 4 प्लस 2 5 माइनस 2, ठीक है। सो x इज ग्रेटर देन दैट इज आई थिंक 4.5, x is greater than equal to 4.5, x is greater than equal to 4.5। अब बोल रहे कि x एक नेचुरल नंबर, तो 4.5 तो नेचुरल नंबर नहीं है उस पे, बट अभी आते हैं। बट पहले देखते हैं p और q का इंटरसेक्शन। तो x ग्रेटर देन 3 यहां पर आएगा और तुम्हारा 4.5 यहां पर आएगा, 4 यहां कहीं पर आएगा, है ना। तो 4.5 से ग्रेटर होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू दिस सॉल्यूशन शुड बी ग्रेटर देन 4.5। तो 4 तो सॉल्यूशन होगा नहीं इसके अकॉर्डिंग, 4 तो सॉल्यूशन है, 4.5 सॉल्यूशन है। बट यहां पर बोल दिया नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर के लिए 4.5 भी सॉल्यूशन नहीं है। 4.5 के बाद नेक्स्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, डेट इज 5, डेट इज 5। तो इसका 5 सॉल्यूशन है ना। तो अगर हम सॉल्यूशन लाइन ड्रॉ करें अगेन फिर से वही, तो इसके सॉल्यूशंस हैं अकॉर्डिंग टू p, दीज आर द सॉल्यूशंस, these are the solution till infinite। according to q, according to q, q के अकॉर्डिंग तुम्हारा, अगर हम सारे सॉल्यूशंस देखें तो ये इंक्लूडेड है यहाँ पर और ये नॉन इंक्लूडेड है। नॉन इंक्लूडेड के लिए हम साइन ऐसा यूज करते हैं, इंक्लूडेड के लिए ऐसा यूज करते हैं। अभी वेविकर मेथड में मैं फिर से एक चीज को बताऊंगा। तो ये सॉल्यूशंस है तुम्हारे, ये सॉल्यूशंस है, ये सॉल्यूशंस है। है ना, इक्वलिटी मैंने कहीं पर गड़बड़ तो नहीं कि ग्रेटर देन, ठीक है, इक्वल्स टू 4.5 एंड x इज दिस, वी हैव ब्रिंग दिस साइड, फाइन। तो अब इसके सॉल्यूशन में इंटरसेक्शन कहां से, इंटरसेक्शन 5 से स्टार्ट है, इंटरसेक्शन तुम्हारा 5 से स्टार्ट है। इंटरसेक्शन तो वैसे 4.5 से, बट इसने नेचुरल नंबर बोल दिया, सो दैट्स व्हाई दीज आर द सॉल्यूशंस ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5। तो यहां पर x का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जो p इंटरसेक्शन q क्या हो जाएगा, यहाँ पर p इंटरसेक्शन q विल बी लाइक 5 इंक्लूडेड होगा, है ना, 5 कॉमा इनफाइनाइट, 5 कॉमा इनफाइनाइट। देखो अगर तुम 4 लोगे तो 4 इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा ना, हमें ऐसा सॉल्यूशन निकालना है जो दोनों को सेटिस्फाई कर रहा हो। सो दीज आर द वैल्यूज। और अगर 4.5 लें, 4.5 सेटिस्फाई कर रहा है, बट 4.5 एक नेचुरल नंबर नहीं है, तो 4.5 के बाद नेक्स्ट नेचुरल नंबर 5 है, वहां से सारे कॉमन सॉल्यूशन इनके हो जाएंगे। 5 6 7 8 है ना, 9, कोई भी वैल्यूज पुट करो। वेविकर मेथड डिस्कस करते हैं। व्हाट इज वेविकर मेथड? तो तुम्हारा वेविकर मेथड सिंपल है। देखो कोई भी अगर इक्वेशन लिखी हो, इफ देयर इज एनी इक्वेशन, इनइक्वालिटी लिखी हो, जैसे एग्जांपल के लिए, अभी एग्जांपल से करते हैं। अगर तुम्हें याद हो पीछे, लाइक वी हैव डिस्कस अ फ्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ सॉल्यूशंस किए थे। तो सपोज ये इक्वेशन है x
4 x 3 and that is लेस देन 0। ये इक्वेशन लिखा हुआ है तुम्हारा। लेट्स से इक्वलिटी भी लगा देते हैं। तो अकॉर्डिंग टू वेवीकर मेथड क्या होता है, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, विल ड्रॉ द नंबर लाइन एंड जिस पॉइंट पर है ना, जिस वैल्यू पर x की दोज वैल्यूज हमें लेनी है, -3 नॉट -3 3 और 4, x की हमें वो वैल्यूज लेनी है जहां पर ये या फिर 0 हो रहा हो या फिर इनफाइनाइट हो रहा हो, एंड दोज पॉइंट्स आर कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट्स। जहां पर ये वैल्यूज तुम्हारी ये लाइक इसको 0 के इक्वेट करना है, जितने फैक्टर्स होंगे तुम्हारे उनको 0 के इक्वेट करना है, एंड उन वैल्यूज को हमें एज अ क्रिटिकल पॉइंट ट्रीट करना है। ये बात समझ में आए? लाइक सपोज एक चीज और मैं एक्सप्लेन, ये हमने अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया था, तो पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर इसको आगे और एडवांस करते हैं। तो अब हमें इसका सॉल्यूशन निकालना है कि लाइक इसकी क्या रेंज है। अगर ये इक्वल टू होता तो दो सॉल्यूशन होते 3, 4, बट अभी कैसे निकालोगे? तो दिस इज द वेवीकर मेथड। फर्स्ट ड्रॉ द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं समझ में आएगा? क्रिटिकल पॉइंट्स, फर्स्ट ड्रॉ द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। क्रिटिकल पॉइंट्स आर दोज पॉइंट्स फॉर विच दिस इक्वेशन दिस LHS इज 0 आर नॉट डिफाइंड। 0 हो रहा हो या इनफाइनाइट हो रहा हो। तो यहां पर देखो 4 पे 0 हो जाएगा पूरा इक्वेशन, 3 पे पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी। तो 3 and 4 आर क्रिटिकल पॉइंट्स है, सो ड्रॉ देम ऑन द नंबर लाइन। फाइन। एंड ऑल्सो ट्राई टू मेक श्योर कि x का कोफिशिएंट जो वो पॉजिटिव हो। अगर सपोज ये 4 - x लिखा होता, x - 3 लिखा होता, तब क्या करते? तब इसको x - 4 करते, दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर देते और इनइक्वालिटी तुम्हारा रिवर्स हो जाता। ठीक है, वो मैं केस बता रहा हूँ। आई होप समझ में आ गया। तो यू हैव टू मेक श्योर वन थिंग डेट x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, दिस इज फाइन। एंड नाउ स्टार्ट फ्रॉम हियर। ऐसे स्टार्ट करो और ऐसे कर्व को, अब मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ एक चीज। यहां से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, बिकॉज हमने सारे इसके कोफिशिएंट पॉजिटिव लिए। विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, विल कम टू दिस पॉइंट। इस पॉइंट पर आएंगे। अब इस पॉइंट पर अगर यहां पर इनइक्वालिटी साइन लगा हुआ है, इफ दिस इज अ इनइक्वालिटी साइन, और ये जो क्रिटिकल पॉइंट है तुम्हारा, ये 0 से रिलेटेड वाला है। 0 से रिलेटेड क्रिटिकल पॉइंट तुम्हारे दो टाइप के हैं। एक तो क्रिटिकल पॉइंट जिसपे वैल्यू जो पूरा एक्सप्रेशन है वो 0 हो रहा हो, दूसरा है जिससे इनफाइनाइट हो रहा हो या फिर नॉट डिफाइंड हो रहा हो। तो तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट्स, अगर यहाँ पर इक्वलिटी साइन है तो ये क्रिटिकल पॉइंट तुम्हारा इंक्लूड होगा जो 0 वाला है। इंक्लूड के लिए अभी मैंने बताया था, दिस इज द, है ना, ये साइन होगा, ये भी इंक्लूड होगा। फाइन। आई विल शो यू मोर एग्जांपल्स, विल गेट द क्लियरिटी। ठीक है, डोंट वरी। तो क्या करना है, पहला स्टेप, सब अभी मैंने छोटा सा एग्जांपल है, आगे और इसको डिटेल में करेंगे। पहले लाइन पर क्रिटिकल पॉइंट्स ड्रॉ करो, ठीक है, एंड चेक द कोफिशिएंट ऑफ x आर पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव है। ड्रॉ द क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं? जिसपे तुम्हारी इसकी वैल्यू 0 हो रही हो या फिर नॉट डिफाइंड हो रही हो। तो यहां पर 4 और 3 पे इसकी वैल्यू 0 हो रही है, सो दीज आर क्रिटिकल पॉइंट्स। ड्रॉ देम ऑन नंबर लाइन। ड्रॉ देम ऑन नंबर लाइन। आफ्टर दैट स्टार्ट फ्रॉम हियर and come to this point. When you come to this point, now check one thing, that power of this term. ये जो टर्म है इसकी पावर क्या है? इसकी पावर 1 है ना। 1 इज अ ऑड नंबर, 1 इज अ ऑड नंबर। तो अगर इसकी पावर ऑड है, देन यू विल चेंज द डायरेक्शन, मतलब यू विल लाइक गो थ्रू दिस लाइन। जैसे यहां पर अभी ये जो ऊपर की लाइन है, दिस इज रिप्रेजेंट पॉजिटिव, नीचे की लाइन है दिस रिप्रेजेंट नेगेटिव। तो हम अभी पॉजिटिव से आ रहे, तो अब मैं देखूंगा कि 4 जो है, 4 से रिलेटेड जो टर्म है उसकी पावर क्या है। अगर उसकी पावर ऑड है तो आई विल चेंज, मैं प्लस से माइनस में चला जाऊंगा, माइनस में आ गया। फिर मैं नेक्स्ट क्रिटिकल पॉइंट पर जाऊंगा एंड आई विल चेक, जो ये 3 है इसका जो टर्म है इसकी पावर ऑड है या इवन है। इसकी पावर एक ऑड है, सो फॉर ऑड आई विल अगेन माइनस से पॉजिटिव, आई विल चेंज द साइन, मैं चेंज करके ऊपर आ जाऊंगा।
ये बात समझ में, अभी और कॉम्प्लिकेट करते हैं बट अभी के लिए ये पार्ट क्लियर आएगा। अब ये तुम्हारा पॉजिटिव सॉल्यूशन ऊपर वाले, ये नेगेटिव सॉल्यूशन है। अब देखो ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है लेस देन इक्वल टू जीरो। तो लेस देन इक्वल टू जीरो, ये ग्रेटर देन जीरो, ये लेस देन जीरो है। लेस देन जीरो की रेंज क्या है, 3 से 4। तो 3 से 4 x बिलोंग्स टू, इस सिंपल को रिप्रेजेंट करते हैं बिलोंग्स टू के लिए। अब देखो ये इंक्लूड करना है, अगर इंक्लूड करना है तो वी यूज ये वाला ब्रैकेट, जिसको बड़ा ब्रैकेट बोलते हैं ना। ब्रैकेट में 3 टाइप के होते हैं, ये इंक्लूड करेंगे, रेक्टेंगुलर ब्रैकेट यूज करेंगे व्हेन दिस टर्म इज इंक्लूडेड, व्हेन दिस नंबर इज इंक्लूडेड। 4 इज ऑल्सो इंक्लूडेड। यहां पर देखो डार्क फिल्ड सर्कल है, तो विल यूज दिस थिंग। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। हियर इट मींस 3 4 एंड 3 एंड 4 बोथ आर इंक्लूडेड। ओके, अब इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। लेट्स से x minus 4, x minus 3, x minus 2 का स्क्वायर एंड x minus 1। we have to find that is less than equal to 0, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 0। इसके लिए सॉल्यूशन फाइंड करना है। सो फर्स्ट स्टेप ड्रॉ नंबर लाइन, और नंबर लाइन point out the critical points. So what are the critical points here? If you see critical point here 1 2 3 and 4, 1 2 3 4, where 3 4 पर क्या हो रहा है तुम्हारा, जीरो वाले क्रिटिकल पॉइंट है, और ये नॉट डिफाइंड वाले क्रिटिकल पॉइंट है। 1 2 3 and 4 एंड चेक द कोफिशिएंट। कोफिशिएंट सबके सही है, पॉजिटिव कोफिशिएंट है x के। आई विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर एंड आई विल कम टू 4। 4 वाले टर्म की पावर ऑड है, तो आई विल चेंज द साइन। 3 पावर वाले इसके लाइक ऑड पावर है, तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव में। आई विल कम टू 2 एंड 2 का पावर देखो क्या है, 2 का पावर है एक तुम्हारा इवन नंबर। तो इवन नंबर पे नाउ आई विल नॉट चेंज माई डायरेक्शन, I will not change my direction, I will jump back to the same direction. I will come to the 1 पे इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी डायरेक्शन अगेन चेंज हो जाएगी बिकॉज ऑड है पावर, तो ये ऐसे आ जाएगा। अच्छा, एक और स्टेप था इसमें कि लाइक सॉल्यूशन कौन से इंक्लूड करने हैं, कौन से एक्सक्लूड करने हैं। 4 और 3 देखो इंक्लूड होगा, 4 और 3 ये डार्क सर्किल बनेगा, फील्ड सर्किल बनेगा, ये इंक्लूडेड है। वेरेज यहां पर वॉइड सर्किल बनेगा बिकॉज दीज आर नॉट इंक्लूडेड, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड हो रहे हैं, या फिर अगर ये सिर्फ इनइक्वालिटी होता है, इक्वल टू का साइन नहीं होता तो सारे एक्सक्लूडेड होते हैं। अगर ये इक्वल टू का साइन, यहां पर देखो इक्वल टू है ना, लेस देन इक्वल टू, अगर ये सिर्फ लेस देन का साइन होता तो सारे एक्सक्लूडेड होते हैं। ये कंडीशन तभी के लिए है जब इक्वल टू का साइन हो, ग्रेटर देन इक्वल टू हो या लेस देन इक्वल टू हो। जब इक्वल टू नहीं होगा तो सारे पॉइंट्स एक्सक्लूडेड सॉल्यूशंस होंगे, ठीक है, तो ये सारे एक्सक्लूडेड होंगे। बट अगर ये होगा तो ये केस होगा। अब यहां पर हमें लेस देन के लिए निकालना, तो लेस देन के लिए ये है और ये है। लेस देन के लिए 2 है, 2 रेंज है। ये देखो माइनस इन्फिनिटी तक गया है, और ये तुम्हारा ये रेंज है। तो अब देखो x का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी, इंक्लूड नहीं करना होता, और इनक्वालिटी कभी इनफाइनाइट कभी इंक्लूड नहीं होता है ना, तो इसके लिए ये वाला ब्रैकेट यूज करेंगे। विल यूज दिस ब्रैकेट टिल 1 इज इंक्लूडेड, नो 1 इज नॉट इंक्लूडेड। यूनियन, ये सॉल्यूशन है, और कौन सा सॉल्यूशन है, 3 इज इंक्लूडेड, या तो 3 4 टिल 4 तक 4 इंक्लूडेड, यस। So this is the solution of this given equation. So this method is called Weaver method. Now let's see different questions. So this is the question. We have already done these questions तुम्हारा quadratic equation में, but let's again do this. 4x square minus 7x minus 30 less than 0. So इसको अगर हम करें 34 120 का 10 12 इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो कितना आएगा, 10 12 पे बनेगा नहीं, 30 40 एंड किस पे आएगा ये, अगर मैं इधर कर दूं 2
दैट इज 26 नहीं, 26 120 होता ना, उस पर भी नहीं आ रहेगा। 24 5 नहीं, फैक्टराइज होगा या ये नहीं होगा? x 120 10 12 एंड 26, इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है? 14 आ रहा है, 14 आ रहा है। एंड चलो अब इसका क्या ही कर सकते हैं, लाइक सपोज इसमें नहीं आ रहा है, वैसा भी तो हो सकता है जहां पर ये लाइक फैक्टराइज ना हो, मे बी मैं भी सोच नहीं पा रहा हूँ। तो इसको क्या करते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला से करते हैं। तो x का वैल्यू आएगा -b प्लस माइनस बी स्क्वायर। बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना फैक्टराइज करने में, थोड़ा सोचना, अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो जस्ट यूज द फॉर्मूला। -b प्लस माइनस, सो आई थिंक ये हो तो गया, लाइक आई वाज नॉट एबल टू थिंक, सॉल्यूशन तो था इसका। 120 169 का रूट 13 होता है ना, 8 7 प्लस माइनस 13 आ जाएगा 169 का, दैट इज इट। सो दैट इज 20/8 आ गया एक रूट, और एक आ गया माइनस कितना, 13 माइनस 7 दैट इज -6। तो ये दो रूट आ गए, एक है तुम्हारा 2 5/2, दूसरा है तुम्हारा 3/4, 5/2 -3/4, दीज आर द टू रूट्स। तो अब इनको क्या करूं, अब अगर इस इक्वेशन को लिखना चाहे तो वी कैन राइट लाइक दिस, x -5/2 x प्लस 3/4 दैट इज लेस देन 0। अब इसको अगर नंबर लाइन पर ड्रॉ करोगे तो दैट इज -3/4 एंड 5/2, और इसके ये ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। कोई भी सॉल्यूशन इंक्लूड नहीं होगा, सारे सॉल्यूशन एक्सक्लूडेड होंगे बिकॉज इक्वल टू का साइन नहीं है, और हमें निकालना है लेस देन। तो दिस इज द सॉल्यूशन दैट इज लेस देन। तो x बिलोंग्स टू -3,4 5,2 एंड दिस इज नॉट इंक्लूडेड बिकॉज इन लेस देन का साइन है सर। आई होप क्लियर। ये तो सिमिलर अभी हमने किया एग्जाम्पल है ना, सिमिलर एग्जाम्पल किया है, बट एक बार फिर से कर लेते हैं इसको। सो पहले तो नंबर लाइन ड्रॉ करो। क्रिटिकल पॉइंट्स क्या है यहाँ पर, -4 एंड तुम्हारा इसको ब्रेक कर लो, ये ब्रेक हो जाएगा ना, इसको वी कैन राइट x -2 x + 2। सो क्रिटिकल पॉइंट तुम्हारे -4 -2 1 2 5, these are the critical points. Draw them on the number line, draw them on number line, and their coefficients are positive, that is fine, and this is greater than no equal to sign, so that's why all the solutions are excluded. And you can say these are critical points related to infinite, but अब matter नहीं करता because equality नहीं है। अगर equality होता then we have to think कौन सा include होगा कौन सा exclude होगा, but यहाँ पर सारे ही exclude होंगे। स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड एंड यू कैन सी सबके ही पावर ऑड है, ईच एंड एवरी पावर इज ऑड, ईच एंड एवरी पावर। बेसिकली मैंने इसको थोड़ा, मैं अगर किसी को प्रॉब्लम हो रहा तो मैं लिख देता हूँ, दिस इज x -1 x -5, दिस इज x -2 x + 2। मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया, ठीक है, मैंने इसको ऐसे ब्रेक कर दिया। अब क्या होगा, अगेन इधर से स्टार्ट करेंगे एंड सबके देखो, सबके पावर ऑड है, सबके पावर ऑड है, हर टर्म के पावर ऑड है, हर टर्म के पावर ऑड है। तो सिर्फ ये रोटेट होता रहेगा, ऐसे ऐसे होता रहेगा, बिकॉज हर बार चेंज कर देगा ना, हर बार इसका चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ लाइक डायरेक्शन चेंज हो जाएगा हर बार। नाउ x बिलोंग्स टू, ये -∞ है, तुम्हें चाहिए ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 ये ऊपर वाले हैं, ग्रेटर देन 0 ये वाले, बिलोंग्स टू अगेन इंक्लूड कुछ भी नहीं होगा बिकॉज इक्वल टू का साइन नहीं है। सो -4 -2 यूनियन, ये वाला, ये सॉल्यूशन हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, 1 2 यूनियन 5 इनफाइनाइट। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। अब इसका करते हैं, इसका थोड़ा इंटरेस्टिंग होगा, तो बिकॉज लाइक इसके डिफरेंट पावर्स हैं, इसके डिफरेंट पावर, कभी ऑड है कभी इवन है, तो ये थोड़ा अच्छा सॉल्यूशन है। अगेन नंबर लाइन पर क्रिटिकल पॉइंट ड्रॉ करते हैं। सो हाउ मेनी क्रिटिकल पॉइंट्स आर देयर, क्रिटिकल पॉइंट्स तुम्हारे हैं लाइक -1 0, इसके लिए देखो 0 है, इसके लिए क्रिटिकल पॉइंट तुम्हारा 0 है, एंड 1 और 2, दीज आर द क्रिटिकल पॉइंट्स। सो -1 0 1 और 2।
अब हमें इक्वल टू का साइन है, सो वी हैव टू सी कौन से सॉल्यूशन इंक्लूड होंगे कौन से एक्सक्लूड होंगे। तो ये कैसे पता करोगे? तो जो सॉल्यूशन जीरो बना रहे वो इंक्लूड होंगे। तो इंक्लूड कौन से सॉल्यूशन बना रहे? माइनस वाला, तो ये दोनों इंक्लूड होंगे। -1, तो इसके लिए ये फिल्ड सर्किल आएगा, ठीक है, इसके लिए फिल्ड सर्किल आएगा। और ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे तो इसके लिए वॉइड सर्किल आएगा, ठीक है। अब जस्ट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, दैट विल बी अवर सॉल्यूशन। तो अगर हम इधर से स्टार्ट करें तो दिस इज 2 का पावर ऑड है ना, 2 का पावर ऑड है, तो ये चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव आ जाएगा। 1 पे क्या है तुम्हारा? 1 का पावर इवन है, तो दिस डायरेक्शन विल नॉट चेंज, डायरेक्शन विल नॉट चेंज, इवन है ना। 0 का पावर इवन है तो डायरेक्शन विल नॉट चेंज। -1 का पावर ऑड है तो डायरेक्शन विल चेंज, अब नेगेटिव से पॉजिटिव चला जाएगा। आई होप दिस थिंग इज क्लियर कि कैसे डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। हमें सॉल्यूशन लेने लेस देन, तो ये सारे सॉल्यूशन लेस देन है, तो x बिलोंग्स टू, हमें देख ये इंक्लूड करना है ना, -1 कॉमा, अब ये सारे तो यहां तक हम डायरेक्ट लिख सकते लाइक, बट ये एक्सक्लूड होगा। इसको देखो दो तरीके से लिख सकते हैं, मैं पहले जो अभी तक कर रहे थे वैसे करते हैं। 0 नॉट इंक्लूडेड, यूनियन 0 नॉट इंक्लूडेड टिल 1 इंक्लूडेड, यूनियन 1 2 नॉट इंक्लूडेड। एक तो ऐसे लिख सकते हैं सॉल्यूशन, ठीक है, दिस इज ऑल्सो राइट। दूसरा देखो कैसे लिख सकते हैं, x बिलोंग्स टू, एक तो देखो यहीं पर लिख सकते थे, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इस पार्ट को हम डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं ना, 0,2 ऐसे लिख सकते हैं ना। 1 तो इंक्लूड हो गया, बीच में 1 इंक्लूड हो गया। जब इंक्लूड नहीं होगा तब ब्रेक की जरूरत है, अदरवाइज ब्रेक की जरूरत नहीं है। ये समझ में आ रहा है? ये पूरा इंक्लूडेड है ना सॉल्यूशन, इसमें 1 इंक्लूडेड है, यहां पर ब्रेक की जरूरत थी बिकॉज 0 इज नॉट इंक्लूडेड। अगर तुम -1 से डायरेक्ट लिख दोगे तो उसमें 0 है नॉट इंक्लूडेड। तो इसको एक तरीके से और लिख सकते हैं सॉल्यूशन, देखो -1 इंक्लूडेड टिल 2 नॉट इंक्लूडेड, ठीक है, एंड एक्सेप्ट इसको ऐसे लिखते हैं, एक्सेप्ट 0, दिस इज ऑल्सो योर सॉल्यूशन। हो सकता है ऑप्शंस में ऐसे रिप्रेजेंट किया गया हो। इसका मतलब ये है कि -1 से 2 तक सारे सॉल्यूशन से एक्सेप्ट 0, और यहां पर तुम देख भी सकते हो 0 से 2 के बीच सारे सॉल्यूशन है एक्सेप्ट तुम्हारा ये इंक्लूडेड है, ठीक है, -1 इंक्लूडेड है एक्सेप्ट 0। तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, फाइन। अब देखो जब ऐसे क्वेश्चन होंगे तो अब अभी तक हमें जो क्वेश्चन मिल रहे थे, अभी तक मैं सिंपल करा रहा था, वहां पर ये ऑलरेडी फैक्टराइज थे, एक्सेप्ट दिस क्वेश्चन, ये सब देखो ऑलरेडी फैक्टराइज थे, है ना। यहां पर देखो तुम्हें फैक्टराइज करना पड़ेगा देन सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे इसमें देखो फैक्टराइज करना पड़ेगा, इसमें भी फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो ये सारे क्वेश्चन है तुम्हें जो फैक्टराइज करने पड़ेंगे देन सॉल्व होंगे। तो लेट्स डू दिस। एंड ऑल्सो यहां पर जैसे ऑप्शन है, यू कैन यूज द ऑप्शंस ऑल्सो इंस्टेड ऑफ जस्ट सॉल्विंग। अगर ऑप्शन से जल्दी हो जाए यू कैन गो विद द ऑप्शन ऑल्सो। सपोज ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है तो ऑप्शन से ही चेक कर सकते, वो सब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले चलो इसको करते हैं। सो दैट इज 6 4 8 3, तो 8 3 है ना, फैक्टराइज कर लेना, मैं जल्दी से कर दे रहा हूँ। 8 3 होगा, 8 और 3, दिस इज द फैक्टराइज। इसका कितना होगा, 3 2 6 है ना, तो इसका करते हैं 2x -3x -2x, आई थिंक, है ना, दिस विल वर्क, 5 आ जाएगा, -5 आ जाएगा और ये -6 आ जाएगा। सो दिस इज, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, नहीं ये नहीं होगा, है ना, दिस विल नॉट बी, इससे तो ये देखो प्लस हो जाएगा ना अगर -3 -2 करेंगे, तो ये 6 और 1 होगा, 6 और 1 होगा। तो दिस इज 2x। फैक्टराइज तुम खुद से कर लेना सही से, क्योंकि ये तो तुम्हें आता है, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना, तो मैं अपने हिसाब से जल्दी से कर रहा हूँ उसे। x -3, सो 2x + 1, एंड अगर चेक भी कर लेना अगर कोई मिस्टेक हो मेरी,
चेक भी कर लेना अगर कोई मिस्टेक हो, ठीक है। सो दिस इज द सिचुएशन। नाउ ड्रॉ द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन, दैट इज -8, -12 और 3। ये दोनों देखो 3 है, ये दोनों 3 है। अब इन दोनों को कैंसिल मत कर देना, है ना, डोंट कैंसिल एनीथिंग, इन दोनों को कैंसिल नहीं करना है, ठीक है। तो -8, -12 और 3 भी यहां पर होगा, 3 को कैंसिल नहीं करेंगे, ठीक है। इक्वल टू साइन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा इनफाइनाइट बना रहा है कौन सा जीरो बना रहा है। इधर से स्टार्ट करते हैं और सबकी पावर देखो क्या है, सबकी पावर ऑड है, तो ये सिंपल सा कर्व तुम्हारा बन जाएगा ऐसे। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना ये था कि ये चीज कैंसिल नहीं करनी, इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिया है, क्योंकि ये मिस्टेक होती है हम कैंसिल कर देते हैं एग्जाम में, वो नहीं करना है। तो यहाँ पर तुम्हें लेस देन 0 वाले सॉल्यूशंस लेने, बिकॉज 3 भी देखो क्रिटिकल पॉइंट है ना, तुम उसे कैंसिल कर दोगे फिर तो सॉल्यूशन ही चला जाएगा। लेस देन वाले, तो ये सॉल्यूशंस तुम्हें लेने हैं। तो x बिलोंग्स टू तुम्हारा -∞ से -8 तक यूनियन -12 till 3। दिस इज योर आंसर। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। इंपॉर्टेंट पार्ट, ऐसा कोई टर्म कैंसिल नहीं करेंगे, बाकी सारे स्टेप सेम है। इसकी मैं बात कर रहा था कि इसमें देखो ऑप्शन से भी कर सकते हो, इसमें यू कैन ट्राई विद द ऑप्शंस, बट आई थिंक दैट सम टाइम टेक्स मोर टाइम, इसमें काफी टाइम लग जाता है। पहले तो फैक्टराइज तो करना ही पड़ेगा, अगर ऑप्शन भी चेक करना है तो फैक्टराइज इज अ बेटर वे टू चेक द ऑप्शंस, है ना। तो 18 है 9 2, तो 3x² एंड 9 2, आई होप मैं सही कर रहा हूँ। 3x प्लस 3 माइनस 2x प्लस 3, so 3x minus 2, x plus 3, and this is this one। अब इसकी क्रिटिकल पॉइंट्स तुम्हें दिख रही। अब अगर यहां पर अगर हम ऑप्शन से चेक करने की कोशिश करें तो देखो क्या है, x तुम्हारा 1 और 8 नहीं है, 1 और 8 नहीं है। यहां पर कहीं पर देखो ऐसा सॉल्यूशन आ रहा है जहां पे 1 और 8 इंक्लूड है, ये देखो, ये सॉल्यूशन होगा ही नहीं क्योंकि इसमें 1 और 8 इंक्लूड है, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये ऑप्शन कैंसिल हो गया, बिकॉज यहां पर ऑलरेडी बता दिया है कि x 1 और 2 सॉल्यूशन नहीं होंगे, ठीक है। इसके अलावा इससे तो कुछ हिंट नहीं मिल रहा है, बट अब इससे देखते हैं। अब ऑप्शन से चेक करो, यहां पर वैल्यू है तुम्हारा, तो देख लो ऑप्शन से टाइम लग जाएगा करने में। आई थिंक यहां पर ऑप्शन से करने में टाइम लग जाएगा, बेटर ये है कि जस्ट यहीं से निकाल लो सॉल्यूशन, देखो डायरेक्टली आ जाएगा। क्रिटिकल पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं, 2/3 इक्वल टू साइन नहीं है तो वी डोंट नीड टू वरी, सिंपल सा करना है। 3 एंड 2/3 एंड 1 और 8, 2 -3 एंड 2/3 एंड 1 एंड 8, ठीक है। तो इधर से स्टार्ट करते हैं, और सबके देखो पावर ऑड है, सबके टर्म के पावर ऑड है, तो जस्ट ये ऐसे चलता रहेगा, अल्टरनेट होता रहेगा। लेस देन 0 चाहिए तो ये सॉल्यूशन है लेस देन 0 के लिए। तो x बिलोंग्स टू -3 इंक्लूड नहीं है ना, -3 इज नॉट इंक्लूडेड हियर, जस्ट चेक, -3 इज नॉट इंक्लूडेड हियर। 0, 2/3 इज ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड, 2/3 नॉट 0, 2/3 नॉट इंक्लूडेड। यूनियन 1,8 that is also not included, so this is your solution। तो ये तुम्हारा पहला ऑप्शन है। I hope this thing is clear. If you have any doubt, just let me know in the comment section. I will explain later on, या फिर मैं तुम्हें कमेंट में रिप्लाई कर दूंगा। इसको भी अगेन देखो ऑप्शन से कर सकते हो, बट आई थिंक बेटर वे है कि सॉल्व भी कर लो, बट यहाँ पर थोड़ा जैसे यहाँ पर हम सॉल्यूशन देखें, चलो ऑप्शन इसको ट्राई करते, बट ऑप्शन अगेन पुट करने में टाइम लग जाता है वैल्यूज। पहले तो फैक्टराइज तो करना ही पड़ेगा, ऑप्शन भी चेक करने के लिए आसान रहेगा अगर हम फैक्टराइज कर लेंगे। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर है, यहाँ पर ये 1 है, तो हम ऐसे नहीं करेंगे कि मैंने ऐसे कर लिया 5 - 2 और ये तुम्हारा 10 4, सपोज 10 4 है और 10 4, ये ऐसे सॉल्व नहीं होगा। यू हैव टू मेक 0 दिस साइड, ठीक है, 0 बनाना होगा। बट ऑप्शन चेक करने के लिए दिस इज अ बेटर वे, ऑप्शन चेक करने के लिए। तो अगर हम ऑप्शन चेक करें यहाँ पर, तो 5 पे तो ये 0 हो जाएगा, 5 मतलब इसका सॉल्यूशन है, तो देखो 5 कहीं पर इंक्लूड है,
इसमें 5 इंक्लूड है, सो दिस मे बी द सॉल्यूशन, है ना, 5 इंक्लूड। बट देखो 2 भी हमारा सॉल्यूशन है, 2 पे पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, बट 2 यहाँ पर नहीं है, मैं ऑप्शन से करना तुम्हें सिखा रहा हूँ। तो 2 विल, ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता बिकॉज देखो यहाँ पर 2 सॉल्यूशन और यहाँ पर 2 इंक्लूड नहीं है, यहाँ पर 2 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देखो क्या बता रहे हैं, यहाँ पर तो ठीक है, यहाँ पर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। इसमें देखते हैं अगर, तो इसमें देखो लाइक 13.5 है ना, 13.5 के बाद वैल्यूज है 13.5 तो 6 से इंटीजर आ रहे हैं, और 15 16 17 से कम, 16 के आसपास 16। तो ये 6 से 16 सॉल्यूशंस हैं, 6 से 16 के बीच में, तो ये भी 2 इंक्लूड नहीं कर रहा ना, तो दिस इज ऑल्सो नॉट सॉल्यूशन। ये 2 इंक्लूड इसमें तो नहीं है, 5 है बट 2 नहीं, इसमें क्या 2 है, 13 3 13 4 13 4 13 3, इसमें 2 है, दिस इज इंक्लूडिंग 2, सो दिस मे बी सॉल्यूशन, दिस मे बी सॉल्यूशन, बट वी डोंट नो। इसको अब चेक करते हैं, इसको चेक करते हैं। आर सारे रियल नंबर सॉल्यूशन है एक्सेप्ट -4 और 0 के बीच में, सारे रियल नंबर सॉल्यूशन है एक्सेप्ट -4 और 0 के बीच में। तब यहां पर देखो इसमें क्या प्रॉब्लम, ये बोल रहा है कि सारे रियल नंबर सॉल्यूशन है इसके, इनइक्वालिटी होल्ड करती है। बट अगर मैं -10 पुट कर दूं, -10 इसने हटाया नहीं, इसने नंबर्स कौन से हटाए, -4 के बाद आता है तुम्हारा -4 पॉइंट समथिंग ले लो, लाइक -3 पॉइंट समथिंग ले लो, या फिर 3, अगर इंटीजर की बात करें तो सिर्फ -3 -2 -1 और 0, इतने नंबर हटाए इसने इंटीजर में, 0 भी नहीं हटाए, इतने नंबर हटाए, -10 नहीं हटाया, इसके अकॉर्डिंग -10 सॉल्यूशन। बट अगर मैं यहाँ पर -10 पुट करूं, देखो अगर मैं यहाँ पर -10 पुट करूं तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन। So -10 is not solution of this given equation. So this is also not included. Only B left, B is the answer. तो तुम देख सकते हो ऑप्शन ट्राई करने में भी इतना टाइम लग गया, अगर हम इसको सॉल्व करें तब देखो क्या करेंगे। आई होप समझ में आए, B इज द राइट आंसर। सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, x² -7x + 10 x² + 6x - 40 bring 1 this side, so this is x², take LCM, ये तुम्हारा आएगा -x² -6x + 40, x² 6x - 40, ठीक है। तो दिस विल गेट कैंसल्ड एंड -13 + 50 एंड दिस इज x10 4, फाइन। So this is अब इसको सॉल्यूशन निकालो नॉर्मली। अब पहली तो बात हमें ये चेंज करना होगा, है ना, देखो यहाँ पर x का कोफिशिएंट नेगेटिव है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, इनइक्वालिटी तुम्हारी रिवर्स हो जाएगी, सो इनइक्वालिटी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब क्रिटिकल पॉइंट्स लिख लो, क्रिटिकल पॉइंट है -10 4 नहीं 50/13 पहले आ जाएगा ना, 50/13 देन 4, और सभी के पावर देख रहे हो ऑड है, तो ऐसे स्टार्ट करो, जस्ट अल्टरनेट चेंज होता रहेगा। ग्रेटर देन वाले तुम्हें निकालने हैं, तो ग्रेटर देन ये है, ये पॉजिटिव है ना, तो x बिलोंग्स टू -10 नॉट इंक्लूडेड बिकॉज इक्वलिटी है ही नहीं, तो इंक्लूड होने का कोई सवाल ही नहीं है। 50/30 यूनियन 4, ∞, यही आ रहा था ऑप्शन, दिस इज द सॉल्यूशन। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। दोनों तरीके ऑप्शन कैसे यूज कर सकते हो और सॉल्व कैसे कर सकते हो प्रॉपर। आई थिंक ऑप्शन यूज करने में काफी टाइम लगेगा, गिव हिट एंड ट्रायल थोड़ा सा, लाइक 1-2 मिनट देखो, अगर ऑप्शन तुम्हें अच्छे मिल रहे हैं, अदरवाइज सॉल्व इट। सो दिस वाज ऑल अबाउट इनइक्वालिटी, और अब हम लेट्स नेक्स्ट सेशन में मॉडुलस डिस्कस करेंगे। डू द क्वेश्चंस फ्रॉम द बुक, वेवी कर्व मेथड, आई होप समझ में आ गया होगा तुम्हें, दैट इज द लाइक इंपॉर्टेंट पार्ट इन द इनइक्वालिटी। और बेसिक एडिशन सब्ट्रैक्शन जो मैंने बताया वो तुम्हें ऑलरेडी पता होगा कि लाइक अगर x इज ग्रेटर देन y है तो दोनों साइड ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट अगर मल्टीप्लाई कर दोगे नेगेटिव से तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट, आई होप दिस थिंग इज क्लियर and I hope you guys like the session, so make sure share it with your friends who are preparing for CAT,
and also subscribe to this YouTube channel. I'll be uploading more sessions, and I have already covered your arithmetic and numbers. Make sure you watch that complete playlist. That will be very beneficial for your CAT preparation. And join the Telegram channel as well as group दोनों का link तुम्हें description में मिल जाएगा. You can join our Facebook group also. So that's it for today. Let's see you in the next session.